Hello friends, welcome back to my channel. I am excited to share that today we will dive into the question answers regarding Nelson Mandela's long walk to freedom. It is an autobiography of Nelson Mandela. I believe this video will prove you very helpful for your exam. So let's start. Class 10, First Flight, Chapter 2. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom by Nelson Rolihlahla Mandela. NCERT Solutions. Question number 1. Where did the ceremony take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstones? इसका मतलब है ये समारोह कहाँ हुआ था? क्या आप भारत में किसी ऐसी सार्वजनिक इमारत का नाम बता सकते हैं जो रेत के पत्थर से बनी हो? Answer. The ceremonies took place in the campus of the Union Building of Pretoria. In India, Rashtrapati Bhavan and Red Fort buildings are made of red sandstones. इसका मतलब है समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग परिसर में आयोजित किए गए। भारत में राष्ट्रपति भवन और लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2. Can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? इसका मतलब है क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई दक्षिण अफ्रीका में शरद ऋतु का दिन कैसे है? आंसर. In South Africa, 10th May is an autumn day because on this day the people of South Africa were free from all discriminations of color and race. इसका मतलब है दक्षिण अफ्रीका में 10 मई एक शरद ऋतु का दिन है क्योंकि इस दिन दक्षिण अफ्रीका के लोग रंग और नस्ल के सभी भेदभाव से मुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 3. At the beginning of his speech, Mandela mentions as extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? इसका मतलब है अपने भाषण की शुरुआत में मंडेला ने असाधारण मानवीय आपदा का जिक्र किया है। उनका आशय क्या है? अंत में वे जिस शानदार मानवीय उपलब्धि की बात कर रहे हैं वो क्या है? आंसर. By an extraordinary human disaster, Mandela means to state the practice of apartheid in South Africa. During this, the blacks were looked down by the whites. By glorious human achievement, he means that the blacks have achieved freedom and now they will never be oppressed. इसका मतलब है असाधारण मानवीय आपदा से मंडेला का तात्पर्य दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की प्रथा से है। इस दौरान श्वेतों द्वारा अश्वेतों को नीची नज़र से देखा जाता था। गौरवशाली मानवीय उपलब्धि से उनका तात्पर्य है कि अश्वेतों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है और अब उन पर कभी अत्याचार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4. What does Mandela thank the international leaders for? इसका मतलब है मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं? Answer. Mandela felt obliged in the presence of international leaders of the swearing. He thus thanks all of them for having come to witness the historical ceremony. इसका मतलब है मंडेला शपथ ग्रहण समारोह में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति से कृतज्ञ महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल होने के लिए सभी का आभार व्यक्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5. What ideals does he set out for the future of South Africa? इसका मतलब है दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या आदर्श रखे हैं? आंसर. Nelson Mandela sets the ideals of liberating people from bondage of poverty, deprivation and sufferings. He also sets the ideal for a society where there would be no discrimination based on color and gender. इसका मतलब है नेल्सन मंडेला ने लोगों को गरीबी, अभाव और कष्टों के बंधन से मुक्ति दिलाने का आदर्श स्थापित किए हैं। उन्होंने एक ऐसे समाज का भी आदर्श स्थापित किए हैं जहां रंग और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो।
Question number 6. What do the military generals do? How has their attitude changed and why? इसका मतलब है सैन्य जनरल क्या करते हैं, उनका रवैया कैसे बदला है और क्यों? Answer. The highest military generals of South African defense saluted Mandela and pledged their loyalty to their duty. Their attitude has now changed towards black due to the struggles and sacrifices that were put in by many heroes of South Africa. इसका मतलब है दक्षिण अफ्रीकी रक्षा के सर्वोच्च सैन्य जनरलों ने मंडेला को सलामी दी और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा की शपथ ली। दक्षिण अफ्रीका के कई नायकों के संघर्ष और बलिदान के कारण अब अश्वेतों के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 7. Why were two national anthems sung? इसका मतलब है दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? Answer. The two national anthems were sung which symbolized the equality of rights between whites and blacks. दो राष्ट्रगान गाए गए क्योंकि श्वेतों और अश्वेतों के बीच अधिकारों की समानता का प्रतीक थे। Question number 8. How does Mandela describe the systems of government in his country? 1. In the first decade and 2. In the final decade of the 20th century. इसका मतलब है मंडेला अपने देश की शासन प्रणालियों का वर्णन किस प्रकार करते हैं? 1 नंबर पहले दशक में और 2 20वीं सदी के अंतिम दशक में। Answer. In the first decade of 20th century, the white-skinned people of South Africa established a system of racial domination against the dark-skinned people. This created the most inhuman systems. इसका मतलब है 20वीं सदी के पहले दशक में दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों ने काले लोगों के खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की एक व्यवस्था स्थापित की। इसने सबसे अमानवीय व्यवस्थाओं को जन्म दिया। 2. In the final decade of the 20th century, the previous system of government had been overturned and replaced by the democratic government or system. इसका मतलब है 20वीं सदी के अंतिम दशक में पूर्ववर्ती शासन प्रणाली को पलट दिया गया और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक सरकार या प्रणाली स्थापित कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 9. What does courage mean to Mandela? इसका मतलब है मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है? Answer. According to Mandela, courage was not the absence of fear, but the triumph over it. इसका मतलब है मंडेला के अनुसार साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 10. What does Mandela think of love and hatred? इसका मतलब है मंडेला प्रेम और घृणा के बारे में क्या सोचते हैं? Answer. Mandela thinks that love comes more naturally to the human heart than hatred. इसका मतलब है नेल्सन मंडेला का मानना है कि मानव हृदय में घृणा की अपेक्षा प्रेम अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। क्वेश्चन नंबर 11. What are the twin obligations does Mandela mention? इसका मतलब है मंडेला ने किन दोहरे दायित्वों का उल्लेख किए हैं? Answer. Mandela mentions 2 obligations that every man has in life, that is obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and the obligation to its people, his community and his country. इसका मतलब है मंडेला ने 2 दायित्वों का उल्लेख किए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होते हैं: अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति दायित्व, और अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति दायित्व। क्वेश्चन नंबर 12. What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these
transitory freedom with the basic and honorable freedoms। इसका मतलब है एक बालक और एक छात्र के रूप में मंडेला के लिए स्वतंत्र होने का क्या अर्थ था। वे इन क्षणिक स्वतंत्रताओं की तुलना मूलभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रताओं से कैसे करते हैं। Answer: Like any other kid, Mandela felt freedom mean to be happy. However, when a young fellow becomes an adult, he learns to earn a livelihood and understand the basic freedom in his family and society that he lives in। इसका मतलब है किसी भी अन्य बच्चे की तरह मंडेला को भी लगता था कि वे आज़ादी का मतलब खुश रहना है। हालांकि जब वे युवा थे, जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो वो हर जीविकोपार्जन करना सीखता है तथा अपने परिवार और समाज में बुनियादी स्वतंत्रता को समझता है। क्वेश्चन नंबर 14, डज मंडेला थिंक द ऑपरेशर इज फ्री? वाई नॉट? इसका मतलब है क्या मंडेला को लगता था कि उत्पीड़क स्वतंत्र हैं? क्यों नहीं? आंसर: Mandela does not feel that the oppressor is free because he thinks that an oppressor is like a victim of hatred who is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness। इसका मतलब है मंडेला को ऐसा नहीं लगता कि उत्पीड़क स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उत्पीड़क घृणा के शिकार की तरह हैं, जो पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के पीछे बंद हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रिम्फ ऑफ? इसका मतलब है उद्घाटन समारोह में इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता क्यों शामिल हुए? ये किसकी विजय का प्रतीक था? आंसर: A large number of international leaders attended the inauguration because it was a common victory for justice, for peace, and for human dignity. It was the complete end of racial discrimination in South Africa. It signified the triumph of humanity against oppression, fear, sufferings, and discriminations। इसका मतलब है उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता शामिल हुए, क्योंकि ये न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की एक साझा जीत थी। ये दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का पूर्ण अंत था। ये उत्पीड़न, भय, पीड़ा और भेदभाव के विरुद्ध मानवता की विजय का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज मंडेला मीन when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? इसका मतलब है मंडेला का क्या आशय है जब वे कहते हैं कि वे उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग है जो उनसे पहले चले गए थे। आंसर: Thousands of people sacrificed their lives during the apartheid movement. It was impossible for Mandela to repay their courage, but he could simply say that himself was their part and parcel in their struggle। इसका मतलब है रंगभेद आंदोलन के दौरान हजारों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। मंडेला के लिए उनके साहस का ऋण चुकाना असंभव था, लेकिन वो बस इतना कह सकते थे कि वो उनके संघर्ष में उनका अभिन्न अंग थे। Question number 17. How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? इसका मतलब है उम्र और अनुभव के साथ स्वतंत्रता के बारे में मंडेला की समझ किस प्रकार बदली? Answer: Mandela understood the real meaning of freedom with age and experience. As a young boy, he thought that he was born free and believed
that as long as he obeyed his father, he was free in every possible manner. But when he grew older, he realized freedom to raise a family and freedom to earn livelihood. इसका मतलब है मंडेला को उम्र और अनुभव के साथ आज़ादी का असली मतलब समझ में आया। बचपन में उन्हें लगता था कि वे आज़ाद पैदा हुए हैं और उनका मानना था कि जब तक वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तब तक वे हर तरह से आज़ाद हैं। लेकिन बड़े होने पर उन्हें परिवार पालने और रोजी रोटी कमाने की आज़ादी का एहसास हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? इसका मतलब है मंडेला की स्वतंत्रता की भूख ने उनके जीवन को किस प्रकार बदल दिया। आंसर, मंडेला's hunger for freedom changed his life. He realized that hunger for his own freedom became the hunger for freedom of his people. Thus, he joined the African National Congress and this changed him from a frightened young man into a bold man. इसका मतलब है मंडेला की आज़ादी की भूख ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी अपनी आज़ादी की भूख उनके लोगों की आज़ादी की भूख बन गई है। इस प्रकार वे अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और ये बदलाव आया। उसे एक भयभीत युवक से बोल्डमैन में चेंज हो गया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू नो अबाउट द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? इसका मतलब है स्वतंत्रता की लंबी यात्रा के बारे में आप क्या जानते हैं। आंसर, इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। यह नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री? इसका मतलब है दक्षिण अफ्रीका कब लोकतांत्रिक देश बना। आंसर, 26 अप्रैल 1994। 26 अप्रैल 1994। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड नेल्सन मंडेला स्पेंड हिज प्रिजन टर्म? इसका मतलब है नेल्सन मंडेला ने जेल की अवधि कहाँ बिताई। आंसर, नेल्सन मंडेला स्पेंड इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबेन आइलैंड। इसका मतलब है मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल रोबेन द्वीप में समय बिताया। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूली बोर्न डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका? इसका मतलब है दक्षिण अफ्रीका में नवजात लोकतंत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे। आंसर, नेल्सन मंडेला। आंसर, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रेगेशन इन साउथ अफ्रीका। इसका मतलब है दक्षिण अफ्रीका में अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करने वाले छात्र संगठन का नाम बताइए। आंसर, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation in South Africa. इसका मतलब है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस एक संयुक्त संगठन था जिसने दक्षिण अफ्रीका में अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? इसका मतलब है मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है। आंसर, टू मंडेला करेज मीन्स नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। इसका मतलब है मंडेला के लिए साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हिच सीजन वाज द इनॉग्रेशन सेरेमनी हेल्ड? इसका मतलब है उद्घाटन समारोह किस मौसम में आयोजित किया गया था। आंसर, द इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज हेल्ड इन ऑटम। इसका मतलब है उद्घाटन समारोह शरद ऋतु में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज जेनानी? मतलब जेनानी कौन है। आंसर,
जनानी इज मंडेला's डॉटर, मतलब जनानी मंडेला की बेटी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज स्वर्न इन ऑन द पोडियम एंड एज व्हाट? इसका मतलब है मंच पर किसने शपथ ली, क्या? आंसर, ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। इसका मतलब है मंच पर श्री डी क्लर्क शपथ लिए दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में पहले स्थान पर थे। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज स्वर्न इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट? इसका मतलब है प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? आंसर, मिस्टर थाबो मबेकी was sworn in as the first deputy president। मतलब श्री थाबो मबेकी ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। क्वेश्चन नंबर 11, लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीकन, हु सेड दिस? इसका मतलब है स्वतंत्रता का शासन हो, भगवान भला करे, ये किसने कहा? आंसर, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट नेशनल एंथम वाज संग बाय द व्हाइट्स? इसका मतलब है गोरों ने कौन सा राष्ट्रगान गाया था? आंसर, द व्हाइट्स sang नकोसी सिकेलेल अफ्रीका। मतलब है गोरे लोगों ने नकोसी सिकेलेल अफ्रीका गाए थे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द नेशनल एंथम संग बाय द ब्लैक्स? इसका मतलब है अश्वेत लोगों के द्वारा कौन सा राष्ट्रगान गाया गया? आंसर, द ब्लैक sang द नेशनल एंथम डाई स्टेम। मतलब अश्वेतों ने डाई स्टेम नेशनल एंथम गाया। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला वांट एज ए स्टूडेंट? इसका मतलब है एक छात्र के रूप में मंडेला किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहते थे? आंसर, एज ए स्टूडेंट मंडेला वांटेड फ्रीडम टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट ही प्लेज्ड एंड टू गो वेयर ही लाइक्ड। इसका मतलब है एक छात्र के रूप में मंडेला रात में बाहर रहने, अपनी पसंद की किताबें पढ़ने और जहां चाहे वहां जाने की स्वतंत्रता चाहते थे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, नेल्सन मंडेला was the hero of South Africa's freedom movement, comment। इसका मतलब है नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे। आंसर, नेल्सन मंडेला was a true hero of South Africa's freedom movement. His inner voice encouraged him to demand a respectful and unique life for all. He performed his obligations for his family as well as his community. Mandela fought against apartheid, a system of white supremacy in South Africa. He also struggled for equality and rights for the blacks in his country and established a democratic government इन साउथ अफ्रीका। इसका मतलब है नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के एक सच्चे नायक थे। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें सभी के लिए एक सम्मानजनक और अद्वितीय जीवन की मांग करने के लिए प्रेरित किए हैं। उन्होंने अपने परिवार और समुदाय के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन किए हैं। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंग-भेद, श्वेत वर्चस्व की व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने देश में अश्वेतों के लिए समानता और अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया है और दक्षिण अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब मंडेला's लाइफ जर्नी फ्रॉम ए प्रिजनर टू द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इसका मतलब है एक कैदी से दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने तक मंडेला की जीवन यात्रा का वर्णन करें। आंसर, नेल्सन मंडेला डिड ए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। He spent many years of his life in prison. His struggle and sacrifices for the rights of black peoples
finally rewarded as the first democratic elections were held in South Africa. His party won 252 seats out of 400 and he became the first black president of South Africa. इसका मतलब है नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किए हैं। उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष जेल में बिताए। अश्वेत लोगों के अधिकारों के लिए उनके संघर्ष और बलिदान का फल अंततः दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले लोकतांत्रिक चुनावों के रूप में मिला। उनकी पार्टी ने 400 में से 252 सीटें जीती और वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। MCQ क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? इसका मतलब है समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, मतलब बलुआ पत्थर का एम्पी थिएटर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? इसका मतलब है किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इट्स पीपल, मतलब इसके लोग। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? इसका मतलब है मंडेला किस पार्टी में शामिल हुए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? इसका मतलब है मंडेला ने साहस के बारे में क्या सीखा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इट इज ए ट्रिम्प ओवर फियर, मतलब यह भय पर विजय है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम? इसका मतलब है राष्ट्र को किससे मुक्ति चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब इसमें ऑप्शन ए पॉवर्टी, बी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सी डिप्रिवेशन, ये सारा होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब गरीबी, लैंगिक भेदभाव, हानि। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वेर इलेक्टेड? मतलब कितने उपराष्ट्रपति चुने गए? आंसर 2, मतलब 2। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? मतलब अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के दक्षिण अफ्रीका में आने से क्या परिवर्तन आया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एंड ऑफ अपार्थाइड, मतलब रंग भेद का अंत। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? मतलब उद्घाटन दिवस कब था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 में। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला? मतलब नेल्सन मंडेला की बेटी कौन है? ऑप्शन ए, जनानी। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज स्वर्न इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? मतलब दक्षिण अफ्रीका के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थाबो म्बेकी। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.